Hello student. Last lecture we saw what is the average profit method and how to calculate goodwill and average profit. Okay. Now मैं फिर से एक बार एवरेज प्रॉफिट आपको एक्सप्लेन करती हूँ एंड देन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके. एवरेज प्रॉफिट मेथड मीन्स जो हमारा टोटल प्रॉफिट होता है उसे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं. ओके. मतलब जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है. ओके. मीन्स this method takes into account the average profit for the last few years and calculating the value of goodwill as so many years of purchase of this amount. Okay. Under this method, at first, average profit is calculated on the basis of the past few years' profits. At the time of calculating average profit, precaution must be taken in respect of any abnormal item of profit or loss may be based on simple average or weighted average. Okay. उसके बाद देखते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करना है. तो आफ्टर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट इट इज़ मल्टीप्लाइड अ नंबर as agreed. The product will be the value of the goodwill if the weighted average profit is taken for the last 4 years. The last year should be given a weightage, the previous year a weightage of 3, the prior to that a weightage of 2, and so on. To obtain the weighted average profit, the profit of the year must be multiplied by its weightage, and the grand total should be divided by the aggregate number of weightages. Okay. ये हमने देखा था. उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो थी वो 2 स्टेप्स थे, वो भी हमने देखे थे. मतलब फर्स्ट जो है वो द प्रॉफिट फॉर द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स प्रेसिडिंग द वैल्यूएशन आर average so as to arrive at the average annual profit earned during the period. This will have to be adjusted in the light of future possibilities and the average future maintainable profit determined. If the profits have been fluctuating, a simple average is used. If profits show steadily or properly increasing or decreasing trend, appropriate weights are used given greater weightages for profits for the last years. The average future maintainable profit is multiplied by certain number of years to find out the value of goodwill. The number of years selected for this purpose are based on the exceptions of the number of years benefit to derived in the future from the past associations. Means जो एवरेज प्रॉफिट मेथड हम यूज़ करेंगे उसमें फर्स्ट हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे एंड उसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे. ओके. दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल फॉर कैलकुलेशन. The net profit earned in the past over the desired period forms the suitable base for computation of goodwill. And one more thing is income tax department uses this method of valuation of goodwill because of its simplicity and universal applicability. Okay. Now we start problem number 4 क्योंकि 3 तक हमने देखा था.
प्रॉब्लम तक हमने क्या देखा है, सिर्फ प्रॉफिट देखा है, मतलब जितना भी प्रॉफिट है उसके ऊपर हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। लेकिन प्रॉब्लम नंबर जो 4 है उसमें क्या है, इसमें जो लॉस है, मतलब अगर आपको इन केस 1 या 2 साल में लॉस हो गया और बाकी 3-4 साल में प्रॉफिट हो गया, तो वो लॉस का क्या करना है ये भी हम देखेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 4, from the following summary of trending result for the last 5 years of Messrs Rana Brothers Raipur, you are required to calculate the value of goodwill of the partnership firm. It was decided to value the goodwill at 2 years purchases of the average profit for the last 5 years. इसमें ईयर्स दिए हैं 2015 to 2019 एंड प्रॉफिट है और लॉस भी है। ओके, 2015 में 11,210 प्रॉफिट था। 2016 में 14,870 प्रॉफिट था। 2017 में 8,350 लॉस था। 2018 में 9,460 प्रॉफिट था एंड 2019 में 12,810 प्रॉफिट था। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट का रूल क्या है, टोटल प्रॉफिट लेस लॉस इफ एनी। अगर आपको कुछ लॉस है तो वो लॉस करके प्रॉफिट लेना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे प्रॉफिट है, मतलब 2015, 16, 18 और 19 के प्रॉफिट की टोटल कर देंगे। उसमें से माइनस हम 2017 का लॉस माइनस कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, टोटल देखते कितनी आ गई है, 48,000। यहाँ पे देखो 48,350 माइनस 48,350 माइनस 8,350 लॉस है, डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, क्योंकि हमें क्या बताया है, 5 ईयर्स का प्रॉफिट और लॉस बताया इसलिए। ओके, तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो हो गया 8,000। कितना हो गया एवरेज प्रॉफिट, 8,000। ओके, इसके बाद हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो जब हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करते हैं तो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेस कितने दिए हैं, एग्जाम्पल में देखो, द गुडविल एट 2 ईयर्स परचेसेस। ये देखो, ये जो सेंटेंस है, गुडविल एट 2 ईयर्स परचेसेस मतलब 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिखता है ना, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 16,000। 16,000 हमारा क्या है, गुडविल है। 16,000 क्या है हमारा, गुडविल है। ओके, समझ में आ गया। अगर लॉस मेंशन किया है तो पहले हम प्रॉफिट की टोटल कर देंगे, उसमें से वो लॉस माइनस कर देंगे, और उसके बाद अगर जो भी प्रॉफिट माइनस लॉस करके आंसर आता है उससे हम क्या करेंगे, जितने ईयर्स का हमें प्रॉफिट और लॉस मेंशन किया है उतने ईयर्स से उसे डिवाइड कर देंगे। ओके, और जो एवरेज प्रॉफिट आता है उसे क्या करेंगे, जितने ईयर परचेस थे उससे हम मल्टीप्लाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5।
Rajaram Traders, Rajgarh, sir, wishes to value the goodwill of their firm on the basis of 1 and 1/3 year purchases. अभी तक हमने सिंपल देखा था 1 2 years, अब यहाँ पे क्या है 1 and 1/3. ओके, of the average profits of last 4 years. The profit of the previous years are to be, यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मेंशन नहीं, मतलब 2015 है ऐसे नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे दिया है. तो फर्स्ट ईयर एक्चुअल प्रॉफिट था 6000. सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट था वो था 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 1.5 टाइम्स द प्रॉफिट ऑफ द प्रेसिडिंग ईयर है. थर्ड ईयर का कैसे है, ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर है. एंड फोर्थ ईयर का 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट ईयर है. ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल बताया, मतलब स्पेसिफिक उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया. 6 ईयर फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, उसके 1.5 टाइम्स सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है. एंड ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब सेकेंड ईयर का जितना प्रॉफिट था उसके ट्वाइस थर्ड ईयर का प्रॉफिट था, और थर्ड ईयर का जितना प्रॉफिट था उसके 1.5 टाइम्स फोर्थ ईयर का था. तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. मतलब कैसे, सिर्फ प्रॉफिट मेंशन देखना है कितना है, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है उसमें प्रॉफिट और ईयर्स लेके हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है. पहले हमें सिर्फ एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हो, ये ईयर जो है, मतलब ये ब्लैक जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो वो जाने दो क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं है. ये देखो, ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल 6000 है. आपको अमाउंट नहीं दिखाई दे रही, पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर ये जो ब्लैक स्क्रोल की जो पट्टी है वो मैं निकाल दूंगी, तो आपको अमाउंट समझ में आ जाएगी. तो अब फर्स्ट ईयर क्या है, एक्चुअल है. फर्स्ट ईयर क्या है, एक्चुअल है. सेकेंड ईयर क्या हुआ था, जो 6000 थे उसका 1.5 मतलब 9000, उसके 1.5 टाइम्स, मतलब 6000 के 1.5 टाइम्स, मतलब 6 × 1.5 या फिर 1.5 ले सकते हो सिंपली. तो हम क्या करेंगे, 1 टाइम मतलब 6 का 6 ही हुआ. ओके, सिंपल बताती हूँ टेक्निक. अब देखो, ये 6000 जो एक्चुअल हमारा प्रॉफिट था उसके 1.5 टाइम्स क्या है, हमारा सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है. अगर आपको कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप सिंपल टेक्निक ध्यान में रखो. देखो, 6000 एक्चुअल है, उसका 1.5 मतलब 1 मतलब कितना होगा, 6000 ही होगा, और हाफ मतलब कितना होगा, 6 का हाफ कितना होगा, 3000. मतलब 6 का 1.5 टाइम्स अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, मतलब क्या होगा, 6000 + 3000 = 9000. क्या हो गया, 6 + 3 = 9000. ओके, देन थर्ड ईयर क्या हुआ था, जितना हमारा सेकेंड ईयर का प्रॉफिट था उसका ट्वाइस हमारा थर्ड ईयर का प्रॉफिट था, उसका डबल था. तो सिंपल है, 9000 × 2 मतलब 80,000. ओके, अब फोर्थ ईयर का क्या हुआ था, जितना हमारा थर्ड ईयर का प्रॉफिट था उससे 1.5 टाइम्स प्रॉफिट हमारा लास्ट मतलब ज़्यादा था फोर्थ ईयर में. तो 18,000 का 1.5 क्या हुआ,
पहले 80,000 प्लस 9,000। 80,000 मतलब 1 ईयर का जितना है उतना, प्लस हाफ ईयर का कितना हुआ 9,000, तो 20,000 हो गया। ओके, ये देखो, अब मैं क्या करती हूँ, ये स्क्रॉल निकालती हूँ ताकि आपको अमाउंट समझ में आ जाए। अब स्क्रीन पे देखो, लास्ट में जो है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, तो फर्स्ट ईयर आपको एक्चुअल 6,000 दिख रहे हैं। देन सेकेंड ईयर क्या हुआ था, जो 6,000 थे उसके 1.5 टाइम्स हमारा सेकेंड ईयर का प्रॉफिट था। मतलब आप ब्रैकेट में लिखो यहाँ पे 6,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 9,000। 6,000 प्लस 3,000 मतलब 1.5 टाइम्स, इसलिए। ओके, देन थर्ड ईयर का है 9,000। सेकेंड ईयर का हमारा प्रॉफिट था 9,000, और थर्ड ईयर का क्या है, जितना सेकेंड ईयर का प्रॉफिट था उसके डबल हमारा थर्ड ईयर का प्रॉफिट था, मतलब ट्वाइस था। तो 9,000 इंटू 2 हमने क्या किया, 18,000 कर दिया। ओके, इसके बाद थर्ड ईयर का हमारा प्रॉफिट था 18,000, और उसमें 1.5 टाइम्स, मतलब उसमें ज़्यादा था फोर्थ ईयर का प्रॉफिट, मतलब थर्ड ईयर का जितना प्रॉफिट था उससे ज़्यादा फोर्थ ईयर का था, लेकिन कितना था, 1.5 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखो 18,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 27,000। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सिंपल कैलकुलेशन जो हम हमेशा करते हैं एवरेज प्रॉफिट का, वैसे ही टोटल प्रॉफिट लेस लॉस इफ एनी, अगर लॉस है तो लेस करो वो, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स। कितना बोला था, प्रॉफिट हमें 4 ईयर्स का ही बताया है एक्चुअल प्रॉफिट, मतलब 4 ईयर्स। मतलब प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, स्क्रीन पे देखो, ये हमारा 4 ईयर का प्रॉफिट था 60,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स, मतलब एवरेज प्रॉफिट हो गया 15,000। एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, 15,000। अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। 15,000 इंटू 1 एंड 1/3, 15,000 इंटू 1 एंड 1/3 नंबर ऑफ ईयर्स है, या फिर 1 एंड 1/3 मंथ्स। हम देखते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेस है, तो हम क्या करेंगे, 15,000 डिवाइडेड बाय 1 एंड 1/3, तो आंसर आ गया 20,000। मतलब गुडविल जो है वो हमारा है 20,000। गुडविल कितना है, 20,000। ओके, समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम में हमें प्रॉपर प्रॉफिट नहीं बताया एक्चुअल प्रॉफिट, तो हम ऐसे कैलकुलेट करके ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, Lokesh and Dhanesh. Lokesh and Dhanesh are partners sharing profits and losses in the ratio of 60%, 40%. They decided they decided to admit Naresh as a partner for a 1/4 share. For this purpose, they have decided to value the goodwill of the firm on the basis of 2.5 years purchases of the average profit of the last 6 years, which were follow year and profits: 2014 loss, 15 profit, 16 profit, 17 profit, 18 profit, 19 profit। ओके, और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बताया है। अब यहाँ पे सिंपल है, सिर्फ क्या बताया है उन्होंने, जो रेगुलर जैसे वैसे ही हमें करना है, प्रॉफिट निकाल के
उसमें से लॉस लेस करना है, जितनी ईयर्स है उससे डिवाइड करना है, और एवरेज गुडविल निकालने के लिए 2.5 या 2.5 हम कर सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया है कि अगर लॉस आता है या फिर हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं बताया गया है, मतलब प्रॉब्लम मतलब एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बताया है, पता है, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे।